جی جناب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسلام جناب فاتح صاحب, کیا حال ہے جناب؟ شکر الحمدللہ. مجھے ساتھ تھی سناؤ کیسی طبیعت تہاڈی؟ جی اللہ پاک کا شکر ہے جی, اللہ کا فضل ہے. جی آپ کیا فرما رہے تھے میسیج کے اندر؟ کر رہے ہو ماشاءاللہ خانہ کعبہ تو آپ جی جی الحمدللہ کریں الحمدللہ. الحمدللہ. ساڈے واسطے بھی کوئی دعا شوا کر چھن. اللہ 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 آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائے جناب. الحمدللہ الحمدللہ. آمنا و صدقنا. ایمان دی دولت تے پہلے اللہ تعالیٰ نے شکر مالک دا, اللہ نے پہلے ایمان دی دولت تو نواز چھڑیا. اچھا, پیر کون نواز سی دیتا. ایمان کی دولت سے نوازا اللہ پاک نے؟ یہ تو میری لیے نئی چیز ہے. نہیں وہ دیکھیں نا, قرآن کریم پڑھے نا آپ, اللہ تعالیٰ نے ایمانیات کے 6 حصے بیان فرمائے ہیں. ہاں وہ تو آپ کو ہی پتہ ہے. اللہ پر ایمان ہاں ہے, اللہ کی کتابوں پر ایمان, نبیوں پر ایمان ہے, فرشتوں پر ایمان. اچھا, یہ ساری چیزوں پہ آپ ایمان اس کے رکھتے بعد ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ کامل کہتے ہیں توفیق کے ساتھ اللہ رکھتے پر ہیں. ایمان, اللہ کے فرشتوں پر ایمان, اللہ کی کتابوں پر ایمان, اللہ کے رسولوں پر ایمان, یہ آپ نے بالکل. بات کی ہے. ہاں جی اچھا, الحمدللہ کرتے میں ہیں. اگر یہ کہوں کہ آپ ان سب چیزوں پر ایمان نہیں رکھتے تو آپ کیا فرمائیں گے؟ وہ جناب وہ تو آپ کا ایمان ہے نا, آپ تو جو مرضی کہہ سکتے ہیں. نہیں نہیں, دیکھیں لیکن میں اگر بات آپ یہ سے ہے یہ ایک کہوں فاتح صاحب, جی میں اگر یہ کہوں کہ آپ لوگوں کا اس چیز پر ایمان نہیں ہے تو آپ کو اصولی طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ دیکھو جی مفتی مبشر صاحب یہ آپ نے دعویٰ کی ہے, اس کی دلیل کی ہے, تو آپ کو دلیل طلب کرنی چاہیے. تو کیا آپ اب مجھ سے دلیل نہیں بات طلب مکمل کریں کر گے؟ لوں. نہیں بات یہ ہے, دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وضاحت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرما دیا ہے کہ ایمان کا تعلق انسان کا خدا کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے ایمان کا نہ, تو تعلق خدا آپ کا کو میرے ایک خدا کے منٹ ساتھ ٹھہریں ہے. جی, میری بات سنیں. میں آپ کی بات میں نہیں نہیں بول رہا. نہیں, یہ بشیر قرآن کی صاحب کون بشیر سی صاحب ایک آیت منٹ ہے؟ جی ٹھہریں. مجھے بھائی ایک منٹ, جو بھی بات کریں قرآن کی آیت بتائیے, ایسے نہیں کہ بھائی قرآن میں ہے. ایسے تو وہ دیکھیں مرزا صاحب بھی کہا کرتے تھے, وہ تو اب ایسے تھوڑی, حالانکہ وہ کہتے تھے لیکن قرآن میں ہوتا نہیں تھا. تو جو بھی بات کریں نا آپ دلیل دیں, مجھے بولنے کا موقع ہی نہ دیں آپ. تو آپ بات آپ سنیں کہ میری مکمل, تو پھر یہ نا پہلے اس آپ کا پہلے حوالہ بات تو شروع دے کر دیں کہ دیتے ہیں اللہ نے جناب. فرمایا ہے کہ ہاں جی. انسان کے ایمان کا تعلق خدا کے ساتھ ہے. نہیں یہ بات یہ ہے کہ اگر انسان ہے نا, کبھی کبھار انسان کی زبان سے ایسی بات نکل جاتی ہے, ٹھیک ہے نا. مطلب آپ اپنی بات طرف یہ سے ہے, تسلیم کر بات رہے ہیں سمجھ کہ لیں. یہ غلطی ہوئی ایک ہے. منٹ ٹھہریں نہیں جی, غلط پھر وہی بات نہ مشر صاحب تہاڈی نہ منیا گل بڑی جڑی نہ لگدی. یہاں تے اگلے بندے نوں گا سوال یہ سوال کر دے, پھر سنیا بھی کرو کہ وہ بندہ پیش کی کرن دیا تہاڈے سامنے. ہن ایک گل دسو, جڑا انسان دا ایمان ہے اون دا تعلق اللہ دے نال ہے کہ نہیں ہے؟ تسی نماز پڑھ دے اللہ واسطے پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ روزہ رکھ دے اللہ واسطے پڑھ دے کہ نہیں پڑھ دے؟ ٹھیک ہے, اگر خدا تعالیٰ تے ایک خدا نو ایمان رکھ دے ہو تے او اللہ نو جان دے ہو, ایک مان دے ہو نا, کوئی ہور تے خدا نہیں ہے نا. ٹھیک ہے نا, اگر نبیاں تے یقین رکھ دے ہو, 1,24,000 انبیاء تے ایمان رکھ دے تے ایمان ہے نا. ہن میری ایک گل دسو, اللہ نو نہ تساں ویکھیا نہ میں ویکھیا, ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم چ فرماتا کہ اللہ ہے, اسی یقین کر لیا کہ خدا ہے یا اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, انبیاء آئے نے, 1,24,000 انبیاء چو پتہ نہیں کنے سچے نے کنے جھوٹے نے ایمان لے آندا ہے, پتہ نہیں. فرشتیاں دے بارے ایمان لے آئے اسی, فرشتیاں دا وجود نہ تساں ویکھیا نہ میں ویکھیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم چ بیان فرماتا فرشتے ہے نہیں ایمان لے آندا. اے تعلق خدا دے نال ہے کہ نہیں ہے؟ تسی ایک گل نو نا لمبا چھیڑ چھڑ دیو ایویں بس نہ بحث کرن واسطے کہ منو آیت پیش کرو. ایسے آیت دے وچ اگر تسی انہی دلیل انہی تفسیر پڑھ لو اس آیت دی جو تر سامنے میں بیان کیتی ہے, ٹھیک ہے نا, تہاڈا سارا تعلق جڑا ایمان دا او اللہ دے نال ہے. ٹھیک ہے نا, غیب دے نال ہے. ہن غیب تے تہاڈا ایمان اگر نہیں ہے انہاں چیزاں تے مطلب تہاڈا ایمان کمزور ہے. میرا تو ایمان ہے کہ اللہ بھی موجود ہے, اللہ نے بیان فرمایا تھا, نظر نہیں آندا لیکن مان لیا. میں 1,24,000 انبیاء اللہ تعالیٰ نے قرآن بھیجے نے, میں ایمان لے آندا, مان لیا انہاں نو, فرشتے ہے نے, میرا ایمان ہے. ٹھیک ہے نا. ہن نہیں ویکھیا, دیکھو جی عین الیقین تے حق الیقین دو ایک علیحدہ علیحدہ جڑیاں اصطلاحات بولی جاندیاں نے. عین الیقین کی چیز ہے جڑے تسی اکھاں نال ویکھدے ہو, حق الیقین کی چیز ہے جڑا تسی یقین کر لیندے ہو اکھاں نال ویکھن تو بعد. تو سر یہی چیزاں نے ایمان دے وچ, اور کی ہے؟ اس واسطے میں کہنا کہ ایمان دا تعلق انسان دا خدا دے نال ہے.
ठीक है अगो तुसी तफसीर बयान फरमा दो क्या अगर मैं गलत है अपनी गल दे विच अच्छा, मैंने खामोशी से आपकी इतनी तफसील सुन ली है। इस सारी जी जी गुफ्तगू के अंदर आपने कोई कुरान की आयत पेश नहीं की कि जिसके अंदर ये हो कि आपने जो फरमाया था कि इंसान के ईमान का ताल्लुक उसके खुदा के साथ है, अल्लाह ने कुरान में फरमाया है। जी जी तो वो आयत मैं ढूंढ रहा था आपकी सारी गुफ्तगू के अंदर कि कहाँ पे आप फरमाते हैं, लेकिन आपने वो आयत नहीं फरमाई। सर मैंने पहली आयत ही आपके सामने ये बयान फरमाई है कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया ईमानियात का ये हिस्सा है 6 ईमानियात हैं एक इंसान के लिए अल्लाह ईमान लाने के लिए उसकी ईमान की हालतें अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बयान फरमा दी है जी, वो कौन अल्लाह सी पर आयतें ईमान हैं मोहतरम फाते साहब? मैं वो ही तो आयतें दरियाफ्त कर रहा हूँ कि वो ईमान की जो हालतें आप फरमा रहे हैं, इंसान के ईमान का ताल्लुक खुदा के साथ है, वो कौन सी आयत में है? कुरान की आयतें तो आप बता रहे हैं कि इन इन आयतों के अंदर है, लेकिन वो सूरह बकरा है, सूरह निसा है, सूरह आल इमरान है, 114 सूरतें हैं। कुरान की कौन सी सूरत है, कौन सी आयत है? वो कम से कम आयत तो बता दीजिए। सर ये बात ये है कि अब वो मुझे पैट आयात का नंबर तो नहीं पता लेकिन ये है कि ये सूरह अच्छा बकरा चलें, में आई आप है ऐसा कर ठीक है लें ना कि बाद में मुझे वो आमन्ना आयतें पेश आम कर देंगे, आम आप मुझे मैं व्हाट्सएप पे सर सेंड कर जी जी देंगे। ठीक ठीक है ठीक है ठीक हाँ, यही तरीका कार है। ठीक आप मैं कहें भाई आपको मुझे व्हाट्सएप फौरी तौर पे नहीं पता, मैं बाद में सेंड कर दूंगा। ठीक हो गया ना? हाँ जी चले बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक। तो मैं इस वक्त ना मौलवी साहब मैं इस वक्त काम पे हूँ लेकिन उसके बावजूद क्योंकि आपकी सुबह कॉल आ गई थी तो मैंने इसलिए आपको कॉल बैक की है चलें, कोई तो मसला अब मुझे तो पता नहीं था कि आपने मेरे साथ ईमान की हालतें पूछनी वो तो मैंने आपको बता दी जुबानी सारी नहीं। ठीक है ना वो तो अब आप आपने कुरान बात करीम की आयत की है तो कहते मैंने हैं जनाब आपसे वो मैं आपको बकायदा अरबी और उसकी तफसीर बयान कर दूंगा आपके सामने पेश कर दूंगा ऐसा मसला नहीं है हाँ जी आगे चलें अब वो आप तो आपने बात की थी तो मैंने इस्तिफसार किया है। आप बात ना करते तो मैं इस्तिफसार ना करता। मैं तो ये कह रहा था कि आप लोग कहते हैं कि देखो जी, हम तो खुदा पर ईमान लाते हैं, रसूलों पर ईमान लाते हैं, कुतुब पर ईमान लाते हैं, जबकि मैं कहता हूं कि आप लोग यानी कादियानी हजरात इन चीजों पर ईमान नहीं रखते। दलील मैंने कहा था आप मुझसे दलील तलब करें, आपने दलील भी तलब कोई नहीं की। अब मजबूरन मुझे खुद दलाइल कुछ देने पड़ेंगे। मिर्जा साहब अपनी कुतुब के अंदर लिखते हैं कि रई तुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ननी हुआ, कि मैंने अपने एक मनाम में अपने आप को खुदा बने देखा और खुदा भी देखा कि अल्लाह अल्लाह बने देखा। ऐन अल्लाह व तयक्कन तू अन्ननी हुआ। और फिर आगे उसकी ताबीर ये निकालते हैं कि मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूं। अब वो तो अपने आप को अल्लाह तो मिर्जा साहब कह रहे हैं, तो आप कहते हैं जी खुदा पर ठीक है ईमान लाना। मतलब खुदा पर ईमान, आप क्या मिर्जा साहब को खुदा मानते हैं कि नहीं मानते? इसके बारे में आप क्या फरमाते हैं? हाँ जी सर ये बात आपने की है ना अभी ठीक है ना अब आपने ये मुझे बयान तो कर दिया है इसकी ताबीर भी आपने खुद बयान कर दी मेरे साहब ने कोई नहीं बयान की ठीक है ना मेरे साहब ने राय तो नहीं फिल्म नाम बयान फरमाया वहां पे अब मौलवी साहब बात ये है नहीं, मिर्जा कि साहब ने यहाँ भी पे ताबीर वजाहत की है जरा ना कि एक मिनट है यक्कन तू सर अन्ननी मैंने हुआ। पढ़ी है तहरीर हो जनाब हुन हौसला करो ना चुरी थले आओ ना जनाब तुम जवाब देने लगा मैं इस गल का जरा होर ना सुनियो हुन मैं कुरान करीम की आयतां पेश करांगा मैं उत्ते फिर तुसी मेरे को हवाला मंगना मैं तुम हवाला भी ठीक, दियांगा ना मैं लिख टेंशन ना लेता लो हूँ, आप मुझे ठीक है ना लिखवाइएगा कुरान की लिख लें आयतें। लिख लें आप लिख लें आपने फरमाया जी मेरे साहब ने फरमाया राय तूनी फिल मनामे कि मैंने ख्वाब में देखा तो ख्वाब में यकीन कर लिया तो सर एक बंदा जो सुता है ख्वाब देखण दिया है ठीक है ना उन्हें तबीरां ढेर सारियां होंदियां ने ठीक है ना हुन एक गल दसो सूरा यूसुफ खोल के देखो जी, सूरह यूसुफ ठीक है ना आयत नंबर। जी जी आयत शुरू से पढ़े ना यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते हैं आयत नंबर बता ये दें, आयत नंबर पहले बता दें कि पूरी सूरह सर यूसुफ ही है। सर चौथी आयत शुरू कर लो तुसी तीसरी को चौथी आयत शुरू कर लो ठीक है चौथी ना है जिधर हजरत यूसुफ ने अपनी ख्वाब सुनाई है जी। अपनी ख्वाब सुनाई है अपने वाले साहब ने ठीक है राय राय तो नहीं अहद आशरा कौकब कमरा जी जी। हेलो, आवाज कट रही है, आवाज कट रही है। कायदा सर हुन तो हुन आवाज कटनी है ना मैं
जी आवाज कट रही है, यकीन मानिए कि आवाज कट रही है। जब आप कॉल सुनेंगे ना इसकी रिकॉर्डिंग तो आपको खुद ही पता चल जाएगा आवाज कट रही है। दोबारा बताइएगा, सूरह यूसुफ में क्या है? जी, सूरह यूसुफ में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब को ख्वाब सुनाते हैं कि मैंने ख्वाब में देखा अहदा आशरा कौकबम व शम्स वल कमरा रअयतुहुम ली साजिदीन। और यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद साहब क्या बयान फरमाते हैं? काला या बुनैया ला तकसुद इय्याका अला इखवातिका फयकीदू लका कैदा इन्ना शैताना लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन। कि शैतान जो है वो इंसान का खुला खुला दुश्मन है जिवें तुहाडा होया है। ठीक है ना? हुण मेरी गल सुन, इत्थे यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद साहब नूं ख्वाब सुनाते ने। की सुनाते ने ख्वाब? कि मैंने देखा ख्वाब में कि मैंने 11 सितारे देखे, सूरज और चांद को सजदा करते देखा। किनू? अपने आप नू। ठीक है ना? हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि तुसी ये ख्वाब अपना भरावां दे सामने बयान ना करियो, क्योंकि इंसान दा दुश्मन जड़ा ना खुला खुला शैतान है। ठीक है? सर हुण एक गल दसो, ये यूसुफ अलैहिस्सलाम नू ख्वाब आ गया। ठीक है ना? उहदी ताबीर जिहड़ी है वो कीती कि इन्हां नू नबूवत मिलेगी। ठीक है ना? हर ख्वाब की ताबीर बयान हुंदी है अगर तुसी उहनू ख्वाब समझ के वेख्या जाए। ठीक है ना? अगर तुसी उहनू ये गल कर लेते कि नहीं जी हज़रत यूसुफ उदों दे तुहाडे वर्गे बंदे उदों हुंदे ना उस दौर दे विच, उन्हां ने भी यही गल कहनी सी कि नहीं जी नहीं, देखो जी अपना ये ख्वाब नहीं हैगी, ये गल सच्ची है। तो सही सितारे ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੇਖੋ, सितारे किथे जनाब सजदा कीता, सूरज ने किथे सजदा कीता, विखाओ सानू। ठीक है ना? ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਨਾ कॉन्टेक्स्ट तो बाहर ना बयान करा करो, वो चीज बयान करा करो जी मेरे सामने बयान फरमाई। मेरे सामने वजाहत ना फरमाया राय तो नहीं फिल्म नाम है कि मैंने ख्वाब में देखा। हुण मैंने एक दसो, खुदा की बस्ती का की मतलब है? ये ड्रामा वेख की बस्ती यानी वो अल्लाह ताला ने बना बस्ती, उथे अल्लाह आप जरा अपनी बात खुदा कीजिएगा। आप बात असल में बहुत लंबी करते हैं कि असल में मैंने भी कुछ आपसे दरियाफ्त करना है, आप ही बोले जाएंगे तो फिर मैं क्या बोलूंगा? सर बात ये है कि जब आप सवाल करते हैं तो सवाल छोटा ही होता है, उसका जवाब जो है वो लंबा देना पड़ता है। इसलिए हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने जो ये बयान फरमाया है कि राय तो नहीं फिल्म नाम में, ये इस मामले को हल कर देता है। और ख्वाबें आपके बुजुर्गों को भी बड़ी आई हैं। ठीक है? आला हजरत साहब को भी बड़ी ख्वाबें आई हैं। ठीक है ना? और मैं यहाँ पे किताब खोलूं ना, आपको उनकी ख्वाबें सुनाना शुरू कर दूं तो आप यहाँ से फिर जो है वो तितर बितर हो जाएंगे, क्योंकि मैंने बताया कि मैं इस वक्त काम पे हूँ और सारा मेरा जो मोबाइल है वो घर पड़ा हुआ है। चलें आगे बात करें, अगली बात। जी अच्छा, गुजारा ये है कि आपने जो बातें की हैं इसके अंदर बहुत सी बातें और निकल आई हैं और चीजों का इंकिशाफ हो गया है। एक वो तो आप निकालने के माहिर है ना, वो तो आप निकालने के माहिर है ना। सुनता हूँ कटे मोहतरम, मैं आपकी बात खामोशी से सुनता हूँ, आप आजिज की बात सुन लें खामोशी से। अच्छी बात नहीं होती है, मुकालमे का ये अंदाज ही नहीं है कि बंदा चुप करके अगले बंदे की सुने तो सही ना। अच्छा, आप फरमा रहे हैं कि मिर्जा साहब ने ये जो फरमाया है कि जनाब रही तो नहीं फिल मनाम यईन अल्लाह, मैंने अपने एक मनाम में अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा, और उसकी फिर ताबीर वो खुद निकालते हैं। ये ताबीर है, कहते यक्कन तो मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। तो फिर आगे फिर इसकी डिटेल आगे फिर मजीद आती है कि मैंने जब अल्लाह बन गया तो मैंने फिर ये जमीनों आसमान को नया करके बनाया, इन फरिश्तों को मैंने तख्लीक किया, इंसानों को मैंने तख्लीक किया, वो पूरी कायनात को कहते हैं कि मैंने फिर अज सरे नो मैंने तख्लीक किया है। अच्छा, ये असल में ये है कि मिर्जा साहब का जो ख्वाब है ना वो यही है कि वरई कुनी फिल मनामी ऐन अल्लाह, ऐन अल्लाह, बस यानी ये वो कहते हैं कि मैंने अपने एक मनाम के अंदर अपने आप को ऐन अल्लाह बने देखा। आगे की सारी चीज वो ताबीर है। ठीक है? अगर ये ताबीर नहीं है तो आप साबित कर दें कि नहीं ये ताबीर नहीं है, या ये साबित कर दें कि ये ख्वाब कहां तक चलता है। रिकनेक्टिंग। हेलो हेलो, या तो ये बता दें कि भाई ये क्या पूरी किताब ही जो है वो ख्वाब है, या ये बता दीजिएगा कि पूरी किताब ही ख्वाब है, इसकी ताबीर कहां पर जाके है वो भी जरा बताइएगा। रिकनेक्टिंग हो रहा है जी। अच्छा आगे, हेलो
इस्तेमाल किते हुए हेलो, बाबू एक साहब। मिनट जी, रिकनेक्टिंग आ रहा है, मुझे अपनी बात कंप्लीट करने दें फातेह साहब। अच्छा, आगे आप फरमा रहे हैं कि रिकनेक्टिंग। मेरा नहीं रिकनेक्ट हो रहा, आपके री हो रहा है। अच्छा जी, कोई बात नहीं, मेरी बात अभी कंप्लीट नहीं हुई, जरा सिमात फरमाएं। अच्छा, गुजारिश ये जी है कि आगे ये जी जी। मिर्जा साहब के हाँ। इस ख्वाब और ख्वाब की ताबीर को आपने कुरान पाक की एक आयत के अंदर बताया कि उसके अंदर भी है कि सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 है या 3 है, इस तरह करके आपने बताया। उसके अंदर तो कहीं नहीं है कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये कहा हो कि मैंने अपने आप को खुदा बने देखा और मैंने यकीन कर लिया कि मैं खुदा ही हूं। ये तो नहीं है। ये नंबर एक। नंबर दो मैं ये है कि एक मिनट सुन सुने तो अब। लेना भैया, अब सुन तो लेना जी। अब सूरह यूसुफ की मैं हाँ जी, तफसीर करो मैं करो तो करो बता करो दूं करो, कुछ, मुकम्मल करो जी। मैं तो कुछ आगे जर्द कर दूं। हाँ दूसरी बात यह कि आप कह रहे हैं कि और उनके जनाब ख्वाब करो की करो। ताबीर ये थी कि उनको नबूवत मिलेगी, हालांकि उनकी ख्वाब की ताबीर हकीकी तौर पे जनाब उनके भाइयों ने और उनके माँ बाप ने उनको सजदा करके हकीकी तौर पे उसकी ताबीर जो है ना वो निकाली। ठीक है, ये ऐसे ही है कि जैसे नबी को जो ख्वाब आता है ना वो हकीकी मानों में होता है। जैसे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़िबा करते हुए देखा हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने, तो उनको सच्ची मुच्ची हाँ उन्होंने जी। ख्वाब की ताबीर के तौर पर ज़िबा करने लगे कि ये क्योंकि नबी का ख्वाब है और नबी का ख्वाब उसी तरीके ही पूरा होगा। अच्छा, एक तरफ तो आप मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, दूसरी तरफ उनकी ख्वाब और उनकी अपनी जाती जो ताबीर है, जो ख्वाब की निकाली के बाद यकन तो अन्ना नहीं हुआ, मैंने यकीन कर लिया कि मैं अल्लाह ही हूँ। ठीक है, तो उसको उसको आप तस्लीम नहीं करते आप लोग, ये बड़ी हैरत है। फिर ऊपर से आप मुझे कह रहे हैं जी बुजुर्ग ख्वाबें तो आपके बुजुर्गों ने भी बड़ी देखी हैं। कोई कोई एक बुजुर्ग बता दें कि जिसने ये वाला ख्वाब देखा हो कि जनाब उन्होंने अपने आप को खुदा बने देखा और फिर बाद में वो ताबीर उन्होंने ये निकाली कि वाते यकन तू अन्ना नहीं हुआ और फिर हमने यकीन कर लिया कि हम बाकी खुदा ही हैं, अल्लाह ही हैं। कोई एक है नहीं मन। अब आप बात कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी मशर साहब, तो आपने अब एक सवाल किया, मैंने वो जी, फतेह पहली बात साहब, जो है मैंने बयान फरमाई है एक जनाब है कि बात मेरे सुने, साहब ने फरमाया रुकें जरा, बात का कुछ लुत्फ नहीं आ रहा, आवाज कट रही है, पता नहीं ये सिग्नल प्रॉब्लम अब आपके साथ है या मेरे साथ है। हालांकि मेरे पास तो 20 MB का इंटरनेट है, मेरे पास नेट की कटिंग नहीं होती, ये आपकी तरफ से कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ सही समझ नहीं आ रही, आवाज कट रही है। मेरे 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 सिग्नल तो फुल हैं जनाब, मैं तो बैठा भी उस जगह पे हूँ जहाँ पे सिग्नल फुल है। मैंने कहा जी आपसे बात करनी है चलें जी, तो अब बोले, सिग्नल तो अब फुल होने आवाज आ चाहिए। रही है, बोले। हाँ, पहली बात यह है कि जनाब आपने ताबीर जो है हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की तहरीर की खुद ही बयान फरमा दी। मीरा साहब ने कोई बयान फरमाया जनाब कि मैं इस बात की ताबीर ये करता हूँ कि मैं खुद ही खुदा हूँ? ये जी, उन्होंने आपके बताया अपने है ना, अल्फाज मैं हैं, कह तो रहा ठीक हूँ है। कि उन्होंने आगे ही बताया नहीं ना, तबीर ने कली बत जनाब यकन तो नहीं अन्ना नहीं फरमाया हुआ। ना, कोई नहीं फरमाया जनाब। मैं कह रहा हूँ उन्होंने खुद ही फरमाया कि बताया आगे, आपने तहरीर पढ़े। हाँ जी, मैं हेलो, हेलो। आपकी आवाज तो मुझे आ रही, मेरी क्यों नहीं आपको जा रही? अच्छा, हेलो। मेरी आवाज आपको आ रही है, ठीक है, आपकी आवाज नहीं आ रही, तो ऐसा है कि फिर दोबारा कॉल कर लेंगे, अभी तो ऐसे मजा नहीं आना। जब सही दोनों तरफ आवाज दुरुस्त चले आ मैं रही हो दोबारा तो फिर यहीं से बात कंटिन्यू कर लेंगे, क्या ख्याल है? आप वैसे भी काम काज से फ्री हो जाएं तो फिर यहीं से आगे बात कंटिन्यू कर लेंगे, ठीक है जनाब? हेलो। चले जैसे। हेलो। जी जी जी, ठीक हो गया, आप फ्री हो जाएं तो फिर मुझे रिंग कर लीजिएगा। मैं जनाब आप कितनी देर तक फ्री होंगे आप? जनाब मैं अभी तो वैसे फ्री हूं, तो वैसे जब आपने कॉल करनी हो ना तो आजिज को आप छोटा सा एक मैसेज कर दें कि अभी मैं कॉल करने लगा हूं। चले ठीक है जनाब। बहुत शुक्रिया ठीक है जी ठीक। फातेह साहब, बहुत अच्छी गुफ्तगू हमारी हुई है और जज़ाकल्लाह जनाब, आपकी ये जो इंशाल्लाह ताला जी ख्यालें मजा हैं। आएगा आपको। मैं
हेलो, मैं आपके सामने कुरान की आयतें पेश करूंगा, टेंशन ना लें कोई कादरी मसला नहीं, साहब। कोई मसला नहीं, कोई आपके मसला साथ बड़ी नहीं। तफसीली गुफ्तगू करेंगे हम हाँ इस जी, मौजूआत, और भी बड़े मौजूआत हैं, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। इंशाल्लाह। शुक्रिया जनाब। कोई बात नहीं, जिस मर्जी मौजूद पे बात कर लें, जी जी मजा जी। आएगा अच्छा, आपको ये है कि ये आपकी इंशाल्लाह। कॉल आपके मिनो वन हम अपलोड कर देंगे, तो इसमें कोई तब्दीली नहीं, ताकि देखने सुनने वालों को जो है ना वो अच्छे तरीके से दोनों वो तरफा जनाब आप बात जहाँ सुन मर्जी सके। आप, हाँ जी, जो मैं आपके सामने आपकी किताबों के हवाले पेश करूंगा सब कुछ ना, पेश होगा, स्कैन कोई वो मसला भी नहीं। आपने फिर भी हाँ जब जब वो जब मीनू। जब आप कॉल करेंगे, हाँ मिनो वन हम ओके, अपलोड कर देंगे, कोई टेंशन नहीं। हाँ जी, चले, बिल्कुल ठीक हो जनाब, गया जी। ओके जी। अभी ये